جی السلام علیکم جی۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں، ملک میں قبضہ گروپ کا بڑا رواج ہے۔ جو معاشرے ترقی کر گئے ہیں، جن معاشروں نے کوئی شعور حاصل کر لیا ہے، جنہوں نے ساتھی کو، بھائی کو، دوسرے کی پیدائش کو تسلیم کر لیا ہے، وہ تو کسی درجے میں کسی سطح پہ پہنچ گئے۔ کچھ ہمارا معاشرہ نفسیاتی طور پر بیمار انسان کی گروتھ کرتا ہے، ان کو پیدا کرتا ہے، ان کو پروموٹ کرتا ہے۔ لالچ، ہوس، یہ ہمارے معاشرے میں یہ بنیادی کردار ہے۔ پھر ہم اپنی آئندہ آنے والی نسل کو اس طرح پروموٹ کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں ان کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، بھائیوں کے متعلق، شریکے کے متعلق، بہنوں کے متعلق، تو وہ ان کے اندر خون میں سرایت کر جاتا ہے۔ ہمارے ادھر معاشرے میں ایک بنیادی حق ہے، خاندانی حق ہے وراثت کا، اس کی تقسیم کا۔ اس کا ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ جی بیٹھ کے آپس میں بھائی کر لیں، بہن بھائی آپس میں بیٹھ کے کر لیں۔ اس کے اصول ہیں کہ جی آپ یہ طریقہ کر لیں کہ اس کی پرچیاں ڈال لیں، جس کو ہمارے ادھر وہ گناہ کہتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ محبت کے اظہار کے لیے اگر 5 6 4 3 بھائی ہیں تو وہ بڑا بھائی حصے کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی پہلے سب سے چھوٹے کا حق ہے، پھر اس کے بعد اس سے آخر میں وہ کہتا ہے جی میں بڑا ہوں، آپ جو سب سے کمزور حصہ ہے، سب سے ماڑا حصہ ہے، وہ مجھے دے۔ یہ محبت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے کہ جو چھوٹا پیدا ہوا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ یہ چھوٹے کو دے دیں، چھوٹے سے محبت کے اظہار کے لیے اس کو دے دو۔ جو بڑا ہے یا بیچ میں جو مذہبی دل والے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ ادھر کر لیں، کچھ ادھر کر لیں، کیونکہ یہ کچھ بٹوارا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ 100% نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ کسی کو فرض کریں 10 روپے زیادہ آ گئے ہیں، کسی کو کم آ گئے ہیں، اس طرح کا اس میں ہوتا ہے۔ تو جو بڑا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ جی میں جو ہے وہ نقصان برداشت کر لیتا ہوں، تو آپ یہ کر لیں۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں فرض کرے کہیں پہ کچھ جگہ پہ شاذ و نادر کچھ ایسے سائیکو بیمار لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نا بڑا ہوں، حالانکہ بڑا ہونے میں اس کا کیا کمال ہے؟ اگر وہ پہلے پیدا ہو گیا تو اس میں بتائیں جی اس کا کیا کمال ہے، اور اگر کوئی چھوٹا پیدا ہوا ہے، بعد میں پیدا ہوا ہے، تو بتائیں اس کا کہ اس میں اس کا قصور کیا ہے۔ چلے جی، اس نے اپنا قصور بھی مان لیا، چھوٹے نے بڑے کو عزت دے دی۔ تو کئی دفعہ کہیں نہ کہیں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ فردن مطلب یہ ایک موقع ایسا آتا ہے جی وہ بڑا کہتا ہے جی سارا کچھ میرا ہی ہے، وہ چھوٹوں پہ ان کو مارتا ہے، دباتا ہے، پرچے کراتا ہے، کہتا ہے جی میں نے آپ کو کچھ نہیں دینا ہے، بلیک میل کرتا ہے، دباؤ ڈالتا ہے، تھانے میں ڈال کے کہتا ہے اوے تو مان اوے نہیں تے تینوں لتر پواواں گا، نہیں تے تیرے تے پرچے کرواواں گا۔ وہ بندہ پوچھے بے وقوف آدمی، اور وراثت ہے، تو اینو لتر پوا، تو اینو اندر کروا، تو ایدے تے پرچے کروا، یہ تینوں مل جانی ہے۔ اس کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ مارزن قلوبن سمن بکم، اور ان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا ہے، یہ ان کے جو دل ہیں یہ بیمار ہے۔ لیکن ایک بات بتائیں، اس کا تو دل ہو گیا بیمار، اس کا تو ہو گیا لالچ،
किसी दर्जे में उसने बड़ा खाया, खा भी लिया, ना वो बंदों की मानता है, ना वो परे पंचायत की मानता है, ना वो थाने की मानता है, ना वो तफ्तीशी की मानता है कि जी तेरा फैसला हो जाए, और ना वो बहन भाइयों की मानता है। अब बंदा पूछे जी स्टे ले आना, उसने तो उस पर लाख रुपया लगता है। अब लाख रुपया ही ना छोटे के पास हो तो फिर वो क्या करे? अगर उसके पास इतना पैसा ना हो तो फिर वो क्या करे? वो तगड़ा माड़े को उधर वो थाने में भी पैसे दे दे, और थाने में जो है उनकी भी मैं अभी बात करता हूं कि वो इंसान है या क्या है। तो इस हालत में क्या करे ना, वो अगर उसको जाना भी पड़े कहीं पे, वकील है वो पैसे मांगता, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो वो हक अपना कैसे लेगा? बताएं मुझे। तो मर जाए वो इसी तरह फिर, या मार दे। फिर कहते हैं जी झगड़ा क्यों करते हैं? वो इसी तरह तो बंदे मरते हैं यार, वो बंदे तो मरेंगे ना। अगर वो नहीं लेगा उसकी खुदी है ना, वो तो मर जाएगा खुद ही। किसी का जो हक मार ले, किसी की गैरत को उठा के ले जाए, किसी को औरत को उठा के ले जाए, किसी की जमीन को उठा के ले जाए, कब्जा कर ले, तो वो मरेगा नहीं? वो कैसे जिंदा रहेगा? बताएं मुझे। तो ये माशरा उसके लिए क्या कर रहा है? ये रियासत उसके लिए, ये इदारे उसके लिए क्या कर रहे हैं? अरे जी वो जी इस तरह है जी, वो 10 साल से कर यार, 1400 साल हो गए हैं। एक बंदा 1400 साल से एक नस्ल नहीं नमाज पढ़ रही है, तो ये नमाज अब फर्ज नहीं रहेगी, ये खत्म हो जाएगी अब ये नमाज। एक बंदे को आपने 10 साल 20 साल 30 साल से हक नहीं दिया, तो आप उसको ही कह रहे हैं कि यार वो ना आपने 40 साल हो गया छोड़ा हुआ, तो अभी भी छोड़े रखे। और बंदा पूछे उसको कहो फिर वो 40 साल का भी हिसाब दे। ये जो जिंदगी होती है ना और मौत होती है, ये हक और बातल में होती है। जो हक पे है जिंदगी है, जो बातल पे है मौत है। जिंदा रहने को जिंदगी नहीं कहते हैं। आप क्या समझते हैं कि जी एक बंदा सांस ले रहा है, चल रहा है, सेक्स कर रहा है, तो वो जिंदा है? नहीं। एक बंदा मर गया, उसका स्वाभिमान कायम रहा है, वो जिंदा है। और जो जी रहा है उसके पास गैरत नहीं है, वो मुर्दा है। अल्लाह ताला इनको मुर्दा कौमें कह के पुकारता है। मुर्दार कौमों को अल्लाह ताला ये तशबीह नहीं देता है कि वो मर जाती हैं, वो जिंदा लोगों को मुर्दार कौमें कह के पुकारता है। मुझे अपने मुल्क, अपने माशरे, अपने वतन से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मैं मतलब ये तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि बेशक ये मानद अदारे या जन्म की मानद भी हो, तो मैं कभी भी अभी भी फर्स्ट क्लास शहरी, सेकंड क्लास शहरी रह के दूसरे मुल्क में रहना पसंद नहीं करूँगा। मैं यही पसंद करूँगा। मुझे अल्लाह ताला ने इतनी, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जेल पे या बेल पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ज़िंदगी को बड़े करीब से, मुझे अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे इतनी सलाहियतें दी हैं कि मैं उसका शुक्र अदा ही नहीं कर सकता हूँ कि मैं हर हालत में शुक्राने नेमत का, मैं मतलब मैं उसका शुक्र, ये अल्फाज है ही नहीं है कोई अल्फाज कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकूँ कि उसने मुझे ये ज़िंदगी दी, मुझे ये सेहत दी, मुझे अकल दी, मैं बात कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, बोल सकता हूँ। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अगर कि मेरे हालात कैसे हैं, मैं कहाँ पे हूँ, फ़र्क पड़ता है तो इससे पड़ता है कि जब मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है तो फिर मुझे फ़र्क पड़ता है। और उस सूरत में बहुत ज़्यादा पड़ता है कि मैं जब किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं करता हूँ। मैं कभी भी इस हक में या इस मकौले पे नहीं रहा हूँ कि हक मांगने से मिलना। मैं कहता हूँ हक वो है जो चल कर आपके पास खुद आए। जो आपको मांगना पड़े वो बस समझ ले कि इज़्ज़त नफ्स आपकी मजरूह हुई है या अगले की हुई है।
मैंने बिजनेस भी किया तो मैं कस्टमर को पहले अल्फाज यही कहता था, मैं हाँ यार जे पैसे मंगने पे ना तो फिर मज़ा नहीं आना। आपको काम कहना नहीं पड़ेगा, हमें पैसे मांगने ना पड़े। लेकिन ये भी बात है कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसा माहौल मिला हो, वरना ये माशरा, ये अदारे, ये आपकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुँचाते हैं। आपको जब मांगना पड़ता है ना तो आप मांगते हैं तो इनको मज़ा आता है, इनकी वो ना खुद ही को तस्कीन पहुँचती है। लेकिन मैं फिर भी शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि मुझे अल्लाह ताला ने इतना हौसला और ये सब कुछ दिया हुआ है, सब्र, हौसला, खुददारी, कि मैं कभी भी मेरा ईमान डगमगाया नहीं है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हक का मसला आ जाए तो आप ज़िंदा रहें या मर जाएं। मेरा बड़ा पक्का यकीन है, मुझे पता है कि अल्टीमेटली मर जाना है। अब काफ़ी उम्र हो गई है, इतनी हो गई है कि अब इतनी बाकी नहीं है। फिजिकली की बात कर रहा हूँ, अभी कुछ हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, मर जाएंगे। हो सकता है आगे कुछ इससे भी बेहतरी हो, बल्कि किसी दर्जे में मैं ये समझता हूँ कि आपको एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि आपको तजस्सुस हो जाता है। लेकिन मैंने ये देखा है, मैंने ये महसूस किया है पिछले 4, 5, 6 दिन में मेरे साथ, मतलब ये हुआ है कि मैंने देखा है कि लोग जो है ना, इनमें इज्जत नफ्स नहीं है, इनमें वो बात, खुददारी, दिलेरी, बहादुरी लोगों में नहीं है। यकीन करें, अगर आप हक पे हैं, अगर आप दिलेर हैं, अगर आप सब्र वाले हैं, अगर आप अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, तो अपने आप के अलावा आपको दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अल्लाह ताला आपका खुद साथ देगा। जी, अस्सलाम वालेकुम।